are into the chapter on gravitation. Quickly, there are 3 topics under gravitation. What are the 3 topics? First is field and potential and field. First is potential and field due to only spherical objects, due to spherical bodies, nothing else. What are the spherical bodies? Solid sphere or hollow sphere or spherical sphere, whatever you want to call. That's it. Yeah. Potential and field. What is the potential due to a point mass? What is the field due to a point mass? These are 2 formulas, correct? Then how I can get this? If I want to get by another, this mass enclosed within the surface. This is called Gauss's law. There are 3 topics. One is potential and field due to spherical objects. Second topic was Gauss's and Poisson's theorem. Gauss's and Poisson theorem. This is Gauss's theorem. E dot. I have done lot of applications of Gauss's theorem, and then how to derive Poisson theorem. This same thing I have written in the differential form. Del dot E क्या था जी? Minus 4 pi g rho. Same thing I have written, and then I have converted del square V was what? 4 pi g rho. This was the Poisson equation. 2. Third was gravitational self energy, amount of work done in assembling a body of particular mass and shape. We have estimated the, so how the work energy we have work done, we have calculated potential energy du, which is nothing. If I bring dm mass, find in the potential V, dm into V. So I have estimated minus 3 by 5 gm square by r. फार्मूला सब्स्टिट्यूशन, इसलिए सबको फार्मूला कंठस्थ होना चाहिए. कैसा? कंठस्थ, गले में रखा रहना चाहिए एकदम फार्मूला. फार्मूले में कोई इफ और बट नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं. फार्मूला सीधे याद होना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल में 4 बार आंसर चेक करोगे, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल का आंसर गलत है तो क्या मिलेगा? 2 नंबर मैक्सिमम. पूरी खूब महाभारत लिख दो, याद रखो फर्स्ट डे से. If the problem is numerical, then no credit I will give for writing down the derivation. I will not give more than 2 marks, and in fact I will take it negative that you do not remember the formula. ये और सोचूंगा कि फार्मूला याद नहीं है, इसलिए अपनी कमी के लिए 3 पेज खराब कर रहा है और मेरा टाइम खराब कर रहा है. That is what I will take. Good. So there is only one small topic left out: potential and field due to a spherical objects. Correct? Spherical objects. First I am taking solid sphere. Solid sphere of radius r. Solid sphere of radius r, mass capital M, mass density you know, Pm by 4 pi by 3 r cube. Definitely, whenever I have to get field and potential, I have to get always in standard. The wherever I have to get, that is represented by small r. Small r is always a variable distance. ठीक है जी, capital R और A is the fixed distance, which is radius. समझ में आया? Small r is always regarded as variable distance. So you have to take always 3 points. One is outside, other one is at the surface, other one is at the inside. That is what is the complete derivation of anything. जब भी कुछ निकालना है 3 पॉइंट पर निकालते हैं. बाहर क्या होगा, सरफेस में क्या होगा और अंदर क्या होगा. सरफेस में कुछ निकालना नहीं होता है, क्योंकि सरफेस में क्या है, जो बाहर का पॉइंट है, पुट इट दैट सरफेस, सेम थिंग इट विल यील्ड, एंड वट एवर इज द इनसाइड पॉइंट, same formula will also give you at the surface, because there cannot be any break. Potential or field is continuous entity, so it will be continuous at the surface also. So inside must be equal to potential inside must be equal to potential outside. Good. So that criteria I will use. Good. So I am doing it by this a moving point P, which I am taking as a distance r from the surface. Correct? I am finding out the field. क्या? Field. What are the best? And this is a sphere. A sphere is a symmetric body. This is the simplest to calculate from.
Gauss's law, easiest to calculate. So I am doing solving by two methods, one by the Gauss's law, another problem I will do by the fundamentals, that is first minus GDM by R square, both the things I will use. Spherical body, easiest to get it by this. So first point I write R greater than R. R greater than R means outside points. P is this P, when I am writing it is R is greater than R, that is outside points. What should I do? In calculating this mass, create a symmetric surface. Symmetric surface. What is that symmetric surface? Sphere. Make the sphere of radius smaller. Everywhere field will be outside. So I assume E जो है E वेक्टर वो कैसा है? E उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन कैसा है? रेडियल. Everywhere. Correct. So this I am going to use surface integral E dot ds is equal to nothing minus 4 pi g times mass enclosed within the Gaussian surface. Gaussian surface is this sphere. Entire mass is within this surface. बताइए भैया, entire mass is within the surface. तो पूरा का पूरा हम लिख दूं minus 4 pi g. अब देखो जी E जो है this E is ER. What is E vector? ER. और ds वेक्टर कैसा है? Always towards the outward on normal. Normal to the sphere is also radial. Normal to the sphere is also radial. So इसका जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड ds है और डायरेक्शन उसका क्या है? R है. R डॉट R इज 1. E इज कॉमन आउट. E को बाहर कर दूं, E को बाहर कर दिया, ये बचा क्लोज सरफेस ds R डॉट R इज 1. क्या हो गया इसका एरिया? 4 पाई R स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में लिख दीजिए. सो मैग्नीट्यूड निकालना है E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इज माइनस 4 पाई G. ये हम अपने आप सब कुछ निकल आएगा. 4 पाई कट गया. E क्या आ गया जी? माइनस GM बाई R स्क्वायर. करेक्ट. ये मैग्नीट्यूड है. क्या है? मैग्नीट्यूड. क्योंकि E वेक्टर क्या है? ER. तो E वेक्टर आ गया. ER greater than R turns out to be minus GM by R square unit vector R. Assumed positive, इसलिए अपने आप माइनस आ गया. डायरेक्टेड टुवर्ड अट्रैक्टिव है. माइनस GM by R square. समझ में आ गया जी? कुछ नहीं. सरफेस में करना है. स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. सेम फार्मूला गिव्स यू एट द सरफेस. सेम फार्मूला गिव्स यू एट द सरफेस. सरफेस में भी आ गया. नेक्स्ट. Now this was your capital R. Now I take a point P which is inside. Now this was center. This is your small r. Now I make a Gaussian surface. Here also I am assuming E is equal to ER. बताइए. Here also I am assuming E is equal to ER. So this becomes surface integral E dot ds is equal to minus 4 pi g times mass enclosed within the Gaussian surface. Good. Now, not whole mass capital M is enclosed within the Gaussian surface. What mass is enclosed? Whichever is small r. Only this much mass is enclosed within the Gaussian surface. Correct? So find out what is the mass enclosed within the Gaussian surface. ठीक है जी. Now within this Gaussian surface, this E is always same. This is also ER dot. This is nothing. ds. Correct. ds is once again 4 pi R square. बताइए इसका कितना? 4 pi small r square. Now only thing is, now it is minus 4 pi g by the mass enclosed within the surface. ये क्या होता? Rho into 4 pi by 3 r cube. बताइए 4 pi by 3 r cube. रो कितना था अपना? m by 4 pi by 3 r cube. 4 pi by 3 कट गया. कि how much is mass enclosed? m r cube upon capital R cube. Clear? Why the mass enclosed now? m r cube upon capital R cube. लिख दिया. They are all standard derivations, nothing. So ये कुछ नहीं. E into 4 pi R square
इज माइनस 4 पाई जी एम आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। देखिए 4 पाई कैंसिल्स आउट, आर स्क्वायर दिस कैंसिल्स आउट, क्या हो गया ई माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब आर। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर ई इज माइनस जी एम बाई आर क्यूब आर। देखिए करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, जैसे आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बोथ द वैल्यूज आर सेम। सो वेरी सिंपली आई कैलकुलेट ड्यू टू स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर सिंगल वर्ड्स। करेक्ट। फील्ड इज ऑब्टेन, पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स इज नथिंग। फील्ड आ गया, फोर्स निकालना होता है, स्मॉल एम इनटू फील्ड इज फोर्स। करेक्ट। नाउ इफ आई हैव टू गेट द पोटेंशियल, तो क्या करूँ? ये फार्मूला है आपको, E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड V, dV इज व्हाट? माइनस ई डॉट dr। गुड। तो चलिए दोनों में निकालते हैं, आउटसाइड में भी निकालते हैं। आउटसाइड में E क्या था मेरा? माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर, दैट वाज एट आर ग्रेटर देन आर। क्या जी? आर ग्रेटर देन आर। नाउ आई एम राइटिंग dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr। बताइए, dV इज माइनस ई डॉट dr। दिस इज नथिंग क्विकली जी एम बाई आर स्क्वायर आर डॉट dr आर। करेक्ट। सो क्या हो गया देखो, माइनस जी एम बाई आर। V turns out to be simply at outside points minus gm by r। ठीक है जी। r dot r is 1, gm by r squared minus plus integration gm by r squared turns out to be minus gm by r। So outside point it is 1 by r, force is 1 by r square. For any outside object potential is also 1 by r, nothing। Same thing is at the surface। बताइए भैया, same thing is at the माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अगर किसी पॉइंट ये भी करना चाहे, इंटीग्रेट करना था, इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, बिकॉज आई विल गेट आउटसाइड फ्रॉम समवेयर आउट। गुड। नाउ ट्राई टू अप्रिशिएट दिस वाज द सेंटर। इफ द पॉइंट वाज हियर आई वांट टू गेट द पोटेंशियल। I know the potential at r is equal to capital R. What is the potential? Gm by r. This you know. You know the potential at this particular point. No, sorry. You know the potential at this particular. From here I will come to this point. Formula is dV is minus E dot field inside Gm by तो वही जो है Gm by r क्यूब r वो खत्म, माइनस माइनस प्लस हो गया। करेक्ट। आर इट इज डी आर। आर डी आर क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड हियर। अरे ठीक है ना, टाइम नहीं है यहाँ पर क्योंकि आर खत्म करना पिछली क्लास का भी। आर डॉट आर डी आर। करेक्ट। दिस इज दिस माइनस माइनस प्लस जी एम बाई आर क्यूब आर डी आर। अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये ध्यान रखना। बाकी सब हर गधा घोड़ा कर लेता है, पोटेंशियल ही 99 का गलत हो जाता है। इनसाइड पॉइंट्स में पैराबोलिक पोटेंशियल है, लिख लो। पंजाबी में सरदार जी लिख लिया करते थे। कौन लिख लिया करता था? सुप्रीत सिंह। कि सर ने कहा कि इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट्स 3r स्क्वायर माइनस 90% का गलत हो जाएगा अगर ध्यान नहीं दोगे तो। बिल्कुल है, बहुत सरल, कुछ नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम है। फॉर द आउटसाइड पॉइंट देयर वाज नो पॉइंट बिकॉज पोटेंशियल इज ऑलवेज डिफाइंड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो जब बाहर का कोई पॉइंट होगा तो आप इन्फिनिटी से ले आएंगे। यहाँ इन्फिनिटी से नहीं लाएंगे, यहाँ कहाँ से लाएंगे? कैपिटल आर टू दैट पर्टिकुलर। बस इतना है, क्योंकि पोटेंशियल इज ए स्टेट वेरिएबल। पोटेंशियल इज ए स्टेट वेरिएबल, ओनली इज डिफरेंस बिटवीन टू इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिफाइंड। तो अब देखो, इसको कर रहा हूं dv फ्रॉम कैपिटल आर टू स्मॉल आर। हो गया अपना काम। ये लो जी, आंसर एकदम सही आएगा। बस इतना ही समझना है।
फार्मूला वहां पर भी यही लगाया था, dv इजिकल टू माइनस ई डॉट डी आर, बट इंटीग्रेशन वहां था इन्फिनिटी टू आर, वहां जो वहां आउटसाइड पॉइंट्स में कर रहे थे, इन्फिनिटी से आर आ रहा था, तो v एट आर, v एट इन्फिनिटी इज टेकन एज 0, इस रेफरेंस लेवल को 0 मान लेते थे, तो वी आर सीधे निकल जाता था वहां पर, बट हियर इट इज वी आर दिस, गुड, सो नाउ इट बिकम्स वी आर माइनस वी एट कैपिटल आर. V8 capital R is known to you. V8 capital R is known to you from outside formulas. Then there is nothing. After that is very simple. So Gm by R cube. Now it becomes R square by 2. So it becomes R square minus R square. R square by 2, 2 कर दिया, Gm by R cube. R square minus R square. Correct. This is definitely a negative quantity because a small r is smaller than capital R. तो यहाँ माइनस लिखूंगा तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. I'm just rewriting the value and quickly see. V at R minus becomes plus Gm by R is equal to minus Gm by 2R cube. क्या हो गया जी? R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. करेक्ट. उल्टा लिख दिया इसको. It is nothing minus Gm by R. हाँ जी, Gm by R. ये भी R क्यूब है, इसी बारे में लिखते हैं. देखो जी, यहाँ 2R क्यूब किया तो 2R स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया. दिस इज ऑल्सो 2R स्क्वायर. सो इज नथिंग माइनस Gm by 2R क्यूब माइनस, एक लाइन में बिना कहीं कट्टस पिट्टस के डेरिवेशन कर दिया विद इन 2 लाइन्स, बिना किसी काट छांट के नीट एंड क्लीन डेरिवेशन आई हैव डन. डायग्राम बना दूंगा, 10 में से 6 नंबर मिल जाएगा मुझे. डायग्राम बनाऊंगा अभी खूबसूरत, फील्ड का और पोटेंशियल का हो गया डेरिवेशन. उसके बाद कुछ 1-2 कमेंट लिखूंगा, फिनिश्ड. गुड. नीट एंड क्लीन कब आता है? जब 4 बार करे हुए हो, कम से कम वो भी स्मार्ट हो तो 4 बार करने में आ जाएगा. 50 बार. मैं शुरू से टीचर था, किसी को भी पढ़ाने के लिए खड़ा हो जाया करता था, लेकिन पढ़ाने के खड़े होने में क्या है, कमांड होना चाहिए, पूरा लगना चाहिए कि इसको कहीं से भी ओढ़ लो बिछा लो. तो डेरिवेशन जो फिक्स चीजें हैं ना, उसमें बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए किसी को. फ्रैक्शन आप सेकंड में हो जाना चाहिए. तो मैं आंख बंद करके, जितने मेरे यहाँ न्यूज़पेपर आते थे ना, न्यूज़पेपर में लाल पेन, हमेशा लाल पेन रखता हूँ. देखो, कभी मेरे पास हमेशा लाल पेन होता है. लाल पेन से पूरा पेज भर दिया करता था, आंख बंद करता था और डेरिवेशन कर दिया करता था. फिजिक्स इतना सरल सब्जेक्ट है, फिजिक्स. दिस इज स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. इनसाइड पॉइंट्स पे फील्ड कैसा था, इसमें समझ लीजिए. फील्ड ड्रॉ कर रहा हूँ. अगर इस एक्सिस को नेगेटिव मान लूँ तो नीचे भी बना सकता हूँ, नहीं तो ऊपर भी बना सकता हूँ. करेक्ट. कैसा था नीचे? E प्रोपोर्शनल टू R. E कैसा है? इनसाइड. ये इनसाइड हो गया. अप टू दिस पॉइंट इज इनसाइड इज माइनस Gm R बाई जो भी है. करेक्ट. इट इज R. सो ऐसा है, स्ट्रेट लाइन है. उसके बाद इट इज 1 बाई R स्क्वायर. एंड व्हाट इज दिस? माइनस Gm बाई R स्क्वायर. फील्ड बनाया है, फील्ड. दूसरी साइड भी ऐसा ही होता है, अगर बनाते तो सेंटर इज द फील्ड. पोटेंशियल कैसा होगा? ना सी द पोटेंशियल. अच्छा, थोड़ा ऊपर जगह नहीं. Now you see at R is equal, field at R is equal to 0 is 0. And at R is equal to capital R, it is minus Gm by R square, fixed. And then afterwards, it is straight line. Then it is 1 by R square. Now here it is minus 3 by 2 Gm by R. Then here it is minus Gm by R. ये 3 by R है, ये minus Gm by R है, ये है. और इस जगह में इनसाइड में कैसा है? R क्यूब 3R क्यूब था ना,
3r² r², ऐसा ये क्या है? पैराबोला है। क्या है ये? पैराबोला। तो देखो जी, ऐसे देखना, ये 3/2 GM/r है, ऐसे दिस इज मोर नेगेटिव, इट इज लेस नेगेटिव। दिस इज व्हाट? क्या है ये? पैराबोला है, और यहाँ पर कंटिन्यूटी है, इसके बाद 1/r है, इसके बाद 1/r। दिस इज मोर रैपिड। एट दिस पॉइंट इट इज -GM/r। बस ये पैराबोला दिखाना है आपको। दिस पैराबोला, आप इक्वेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बस। दैट इज व्हाट आई रिक्वायर। गुड। फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सिर्फ स्फेरिकल बॉडीज लिखा है, इसलिए सिलेंडर नहीं पूछना चाहिए, उसको नहीं पूछना चाहिए ना, पूछा भी नहीं है, पूछना चाहिए भी नहीं। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? पूछा भी नहीं है, पूछना चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये है रिटन इस फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, नो अदर ऑब्जेक्ट, नो रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट आल्सो। गुड। नाउ आई एम गोइंग टू डू स्फेरिकल सेल। उसके बाद खत्म हो गया, ऑल द थिंग्स आई हैव रिटन, देन इट इज स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल, नारियल समझ रहे, जैसे कोकोनट है, कोकोनट अंदर से खोखला है, अंदर कुछ नहीं है, सूखा हुआ है, इज स्फेरिकल सेल, हॉलो स्फीयर। वेयर इज द मास? सरफेस, सरफेस। गुड, surface. Good. Whole. What is the surface area of the sphere? 4πr². Total mass is capital M. Good. So I will say surface mass density M upon 4πr². Here also the same thing. Same thing means outside point, surface point and inside points. But this I want to do it from the basics. Though there are two methods in this thing. By basics means using the law of force. Second is by the Gauss's law. This also you can evaluate easily by the Gauss's law. Easily, same way this also can be evaluated by the Gauss's law, but I am showing from the fundamentals. So in fundamentals, if they have not asked the field before, पहले field नहीं पूछा है, the derivation could be two ways. They can ask you find out the field and hence find the potential. If he say find out the field and hence find the potential, then you have to first find out the field, then the potential. And you know finding out the field is relatively difficult than finding out the potential. Field is a vector quantity, so you have to always worry about the direction. And potential is very simple. And from potential, field can be always obtained. क्या है field? Minus grad V. Minus grad V. Oh, जब V is only function of R, it will become minus dV/dr. E can be easily obtained from that. So if there is no choice, straight away they are saying find out the potential and then field, it is easier. But if I ask you find out the field, then potential, then it will be little, then you have to concern about the direction, both the things I will say. So what I have to take? If I have to get the potential dV, then I have to consider a mass element. Yeah, infinitesimally small mass element. So I am considering a mass element from here. I take a distance here. This much thickness mass element I take. ये क्या है जी? R है. क्या है R? This will become what? D theta. This is theta. This is your D theta. This is D theta. So ये क्या हो गया thickness? R D theta हो गई. So I am taking a mass element. This is the mass element. This is the mass element. On the surface of hollow sphere, I will consider a mass element. Then mass element will become what? Thickness is R D theta. और circumference इसका कितना हो गया जी? 2 pi this 2 pi R sin theta. This is theta. This is R sin theta. So here dm और जो dv कुछ नहीं है, dv है minus gdm upon distance of that mass element from that particular point. So mass element is this distance of this element from the point at which I have to find out. So this distance
This distance. This I can call small x. Good. So for this particular point, capital R is fixed. बताइए, capital R is always fixed. Small r is also fixed. X, that is g dm by x. G dm by x, correct? And x, how much x can vary? This element can be at either adjacent, extreme. Element could be here, is spherical cell, a symmetric body. And if I consider an element exactly opposite, there will be that other element, similar element. One extreme is this, here element could be there, other extreme is here, correct? So small x, if the element I will consider here, what will happen to small x? This small r minus capital R. If I consider the other end, small r plus capital R. This is A, this is A dash, correct? So I want dm. Dm is nothing, sigma dA. Sigma is your m upon 4 pi r square, and dA is your 2 pi r sin theta r d theta. R square cancels out this 2. क्या जी, m by 2 sin theta d theta. समझ में आ गया भैया? dm is nothing. So dv कितना हो गया जी? माइनस जी m by 2 sin theta d theta अपॉन x. करेक्ट? फील्ड होता था, फील्ड लिख देता माइनस जी dm by x स्क्वायर. बट फील्ड के लिए आई हैव टू बी वरीड अबाउट द डायरेक्शन. इसका ऐसे होता, as symmetrically I would have taken this point, here it will be this. So one component will cancel each other, only one component has to be counted. So cos theta, sin theta could be will calculate. Right up reset. I don't want to write in terms of theta. I want to put the limits on easily on x. Good. So I have to convert theta into x. Good. X will vary because small r will vary. Point could be anywhere outside. Good. X will vary. So theta I am going to write in terms of this. तो कैसे लिख सकता हूँ theta बताओ? इसमें cos theta लिख लूँ इस वाले triangle में. This is r, known to you. This is capital R, that is also known to you. This distance I am calling x. This distance, the distance of element from that point, I am calling x. I am calling x. And I want to convert this theta, d theta into the format of dx, so that I can put the limit into the format of dx. That is why I will say in terms of x, element could be here or otherwise. So how to convert? So I am writing cos theta. Cos theta क्या होगा यहाँ से बताओ? Cos theta क्या हो गया जी? Small r square plus capital R square minus x square upon 2r. Good. Differentiate. Minus sin theta d theta. Cos theta differentiation is minus sin theta d theta. This is all 0. It is nothing. Minus 2x dx upon 2r. ये जी देखिए माइनस माइनस गायब हो गया. So sin theta d theta is written. Sin theta d theta is nothing. x dx upon rr. Sin theta d theta is x dx upon rr. और x कट गया. देखिए just substitute. What you get? Substitute here. dv you get minus gm by 2 sin theta d theta, that is x dx upon r into r divided by x. x भी गायब हो गया. क्या हो गया भैया देखो, माइनस जी एम अपॉन 2r. सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है. माइनस जी एम अपॉन इंटीग्रेशन इज dx. इंटीग्रेट कर दीजिए. Good. So for point P, this element x की limit, what could be the limits of x?
this point, this is x, this is the nearest point is this. Good. Coordinate of A, if the mass element is here, what is the distance of P from here? Capital R minus R, and here it will become capital R plus R. We obtained the substitute and tell me. So V is there. V at RH turns out to minus GM by 2 R X was और ये लिमिट गई कहाँ से? R माइनस R से R प्लस R, so it is R plus R minus R plus R, करेक्ट. 2R हो गया. देखो सही लिखा गलत लिख दिया. लिमिट इज R, this point A, R minus R to R plus R. This will become R plus R minus R plus R, correct? हाँ स्मॉल, सॉरी उल्टा लिख दिया. जस्ट राइट. तो क्या हो गया? 2R हो गया. लिमिट इस जगह की कितनी है? इस जगह का कौन है? यहाँ से दिस इज स्मॉल r, करेक्ट. दिस इज कैपिटल R. दिस पॉइंट इज R माइनस कैपिटल R. सो दिस विल लिमिट वाज योर R minus R to R plus R. गुड. तो क्या हो गया जी? R plus R minus R plus R. ठीक है जी. 2R क्या करें? minus GM by R. This potential for the cell also at the outside points is simply minus GM by R. Even from the Gauss's law if you will evaluate, then also it will turn out to be same. कुछ नहीं निकाला था भैया, ये निकाल के लिखा था. क्या लिखा था? माइनस G अपॉन 2RR क्या था ये? dx R माइनस R to R प्लस R. यहाँ हम था GM by 2. This is written. This is minus GM by R. Correct. फील्ड निकालना है. फील्ड निकालना है. बताती V is minus GM by R. DE और सॉरी E क्या? E is what? Minus grade V is a function of R. It is function of R. So E will become what? Minus dV by dr. And vector है vector. R cap essential. These are the mistakes that people make. R cap. Without that is not. Grade को खोलोगे. V is a function of R, so only that function I have written d by dr unit vector. Differentiate कर दिया. Nothing. Minus minus will become plus. Whenever I will differentiate, 1 by R is minus 1 by R square. Minus GM by R square. This is R. Same formula. Spherical cell is also same. Outside points, whether it is cell or it is solid, both the things are same for outside points. Correct? अब इसको मैं रिवर्स करता हूँ जरा. If I have to get the field first, ये तो बहुत सरल था. It was very straightforward. But if I ask you to get the field first from first principles, same thing I am going to do. Same thing. Same thing. Everything is same. Sorry. Everything is same. This element I have considered. This was your theta. This was my R. This was my d theta. This was your r d theta. This was my r sin theta. Point P was here. Whose distance was your small r. This element is your x. Good. अरे ठीक है ना, यही डायग्राम है. Will my diagram will undergo a change? Now d will become what? Due to point mass. Minus g dm by the distance of dm from that particular point. What is the distance of dm from this particular point? X. This is the magnitude.
Good. What is the direction? Towards attraction. That means here. Good. If it is cell or sphere, they will have the symmetric component other side also. So opposite side भी एक होगा, opposite side भी होगा. Opposite side वाले का कैसे होगा? That will be the field. This is DE. This is also DE. Diagram may not be representative for three-dimensional pictures. This is DE, correct? Now, whenever I resolve, if I call this angle is alpha, then this component and this component are D sin alpha will balance each other. Only components are this. Good. Always this kind of thing will happen. So which component is being added? This vertical component will cancel each other. Only this cosine component will be added. So E net will turn out to be integration D cos alpha. If I have called this angle as alpha, then this component balances each other. Only this component has to be double नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि integration will always take into account. Every element will have this kind of thing, symmetrically opposite end, so that integration takes care of the other side. Good. D cos alpha. D is minus g dm by x square. What was dm? Now only values I am writing. And this only value I am writing. सिर्फ magnitude लिख रहा हूँ. Here only I am magnitude I am writing. Direction already I have taken into account. So what is this? Just substitute it. Minus g. dm was what? m by 2 sin theta d theta. Sin theta d theta by x square. Sin theta d theta by x square. ये लो जी. D लिख दिया. माइनस जी एम बाई 2 साइन थीटा डी थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर. D, this is DE. This is only DE. Now here it is cos alpha also. Here is cos alpha. This is alpha. What is cos alpha? Cos alpha can always be written in terms of capital R, small r and x. What is cos alpha? What is cos alpha from here? Small r square or x square plus small r square minus capital R square upon 2xr. समझ रहे हैं? ये सब भी करना पड़ता है. आंसर वही आएगा जो निकाला था. So अगर चॉइस ना दी हुई, मतलब अगर ये ना कहा हुआ कि फाइंड आउट द फील्ड फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स, देयर इज नो नीड टू डू दिस. हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इट विल अननेसेसरली बैल मुझे मार. व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड रिसोर्स when it could have been done easily by solving the potential and differentiating that? Correct? Answer will follow, but I am just showing you how it is following. Gm by 2 sin theta d theta upon x square cos alpha. Cos alpha is x square plus r square minus r square upon 2xr. Cos alpha लिख दिया. Cos alpha लिख दिया. Cos alpha लिख दिया. ठीक है जी. ये लो भैया जी. माइनस जी एम अपॉन 2, ये 2 क्या 4 हो गया, 4xr. अब मैंने लिखा इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. ये दोनों लिख दिया. करेक्ट. ना साइन थीटा डी थीटा, ऑलरेडी आई हैव रिटन साइन थीटा. कॉस थीटा लिखा था ना यहाँ पर, कॉस थीटा लिखा था. व्हाट वाज कॉस थीटा? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आर आर. तो दिस वाज नथिंग. माइनस साइन थीटा डी थीटा वाज माइनस 2x dx अपॉन 2 आर आर. ये खत्म हो गया. दिस इज दिस एक्स dx अपॉन आर आर. साइन थीटा डी थीटा इज व्हाट? एक्स dx अपॉन आर आर. सही करोगे तब. जस्ट गो अहेड. जस्ट नाउ टेल मी व्हाट इज द इंटीग्रैंड. गुड.
जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा एक्स डी एक्स बाय आर स्क्वायर। देखिए जी, एक 1x कैंसिल्स आउट, so it is nothing minus gm upon 4r r square, correct, 4 small r square capital R. Now it is nothing 1 plus r square minus r square upon x square dx. Good, is nothing minus gm upon 4r r square, 4r r square, correct. Now at the outside point, same thing small x. For outside points, this can vary from this point, whose coordinates are कितना जी, small r minus capital R, तो small r plus capital R, correct. Just rewriting, इंटीग्रेट करके लिमिट लिख रहा हूँ और सही होगा तो आ जाएगा। dx इंटीग्रेशन इज x, r square plus r minus r square is constant, x 1 by x square minus 1 by x, x raised to power minus 2 is minus 1 by x, so it becomes minus r square minus r square upon x, correct. Yes. Correct. Now limits are r minus r to r plus r, रख के बताओ मुझे, just tell me the value when we will put small r plus capital R minus small r प्लस कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल आर, पहला वाला टर्म हो जाएगा 2 कैपिटल आर। देन आगे बताओ मुझे रेस्टल में, इफ इट इज करेक्ट आंसर विल फॉलो माइनस जी एम अपॉन 4r r स्क्वायर, ये हो गया जी r प्लस आर माइनस आर प्लस आर, माइनस दिस विल बिकम r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन r plus r, correct, minus r square minus r square upon r minus r, tell me, minus gm upon 4r r square 2r माइनस, ये देखिए ये कितना था जी, ये हो गया r माइनस कैपिटल r माइनस कैपिटल R, ये हो गया माइनस आर प्लस आर, सो इट इज माइनस आर माइनस आर माइनस आर, क्या जी ठीक है ना। अरे डिवाइड किया तो हो गया माइनस आर प्लस आर, और माइनस आउटसाइड है तो क्या हो गया माइनस आर, तो माइनस दिस कैंसिल आउट, क्या हो गया जी 2r हो गया जी। गुड, कितना हो गया 2r प्लस 2r 4r, करेक्ट, 4r कट गया। उल्टा लटकना पड़ा, एग्जाम में गलती हो जाएगा, अगर पहले से 4 बार नहीं किया है तो एग्जाम में गलती हो जाएगा लिमिट डालने में भी। दैट्स व्हाट इज कॉज, नॉट डिफिकल्ट बट बिकॉज फील्ड इज a vector quantity, that is why I have to resolve the component, other things I have to do for the field. And once I have set up the integrand, then you can write for the inside points also. inside में क्या पॉइंट है बताता हूँ, समझ में आ गया भाई साहब। inside points में क्या होगा, just I am rewriting, लिमिट ही चेंज करूंगा। दिस इज द ओनली इंटीग्रेशन फॉर डी। आई एम जस्ट रीराइटिंग। देखिए इनसाइड में भी वही होगा, दिस एलिमेंट I have considered, now this was your dm, this was theta, it was d theta, it was your r. Now I consider the element somewhere here, ये समझ लूँ, ये ले लिया आपका मैंने स्मॉल आर पी। गुड, देन व्हाट इज x, दिस इज x, दिस योर x। नाउ स्टिल एवरीथिंग इज सेम, यहाँ कहीं भी एलिमेंट ऐसे होगा, यहाँ भी ऐसा ही होगा। अभी भी ई नेट के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इंटीग्रेशन, इसको अगर अल्फा कह दिया है डी कॉस अल्फा ही करना पड़ेगा। सेम लॉ, सेम थिंग। क्या निकाला मैंने अभी, क्या इंटीग्रेंड सेट किया था बताओ। इसके बाद इंटीग्रेंड डी कितना था जी, डी कुछ नहीं था, माइनस जी डी एम बाई एक्स स्क्वायर माइनस जी डी एम क्या था जी, एम बाई 2 साइन थीटा डी थीटा बाई
x square. Sin theta d theta was what? x dx upon r. लिख दीजिए यहाँ पर माइनस जी एम बाई टू साइन थीटा डी थीटा इज एक्स डी एक्स अपॉन आर आर और एक्स स्क्वायर ये कट गया. सो नथिंग माइनस जी एम अपॉन टू आर आर क्या जी डी एक्स बाई एक्स. दैट वाज डी ई माइनस जी एम. फिर से लिख दिया है कुछ नहीं, सेम थिंग टू आर आर dx by x. Cos alpha. What was my cos alpha? What was this is alpha. So alpha is once again same. Alpha is once again same. R square plus R square minus X square. Alpha is same. R square plus R square minus X square upon 2 R. Correct. dx. So क्या किया जी? एक कुछ छूट गया क्या? माइनस जी एम. कुछ छूट गया कहीं कुछ बताओ. हाँ साइन थीटा डी थीटा तो लिख दिया ना एक्स डी एक्स बाई आर. यही तो. हाँ टू तो नहीं होता. टू हाँ कॉस अल्फा ठीक है ना. आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आर आर की जगह. अच्छा एक्स आर होगा. कॉस अल्फा लिख रहे हैं ना. cos alpha, this is cos alpha. So cos alpha is capital R square. Sorry, cos alpha. Sorry, उल्टा लिख दिया. कोई बात नहीं जी, चुप, कंफ्यूज ना करो. तो क्या हो गया? दिस इज R स्क्वायर और स्मॉल एक्स स्क्वायर पहले लिख दूँ, डिवाइड करना है. स्मॉल एक्स स्क्वायर इट इज स्मॉल एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन व्हाट 2xr. So minus 2r r square. Now it becomes dx dx. 2 भी ले लिया 4r r square. Now 1 plus r square minus r square by x. देखिए भैया, देखिए x स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ. दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज 1. देन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स. करेक्ट. यही पहले भी सेट किया था. सेम थिंग आई हैव सेट अर्लियर आल्सो. सो देयर इज नथिंग माइनस जी एम अपॉन 4 आर आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या जी डी एक्स. गुड. Whether it is outside points or it is inside points, integrand is same. Only thing what is going to change? X की values. Good. If the point is inside, element can be once again here. One element, spherical cell is this and mass is distributed over its surface. Element could be at A or it could be A dash, anywhere A. So what is the coordinate of A from this point? This is capital R, this is small r. So now it is capital R. समझ में आया? A का कोऑर्डिनेट कितना होगा? This total is capital R minus small r to capital R plus small r. So small r, capital R minus small r to capital R plus r. अब डाल दीजिए तो अब कितना हो जाएगा? 4 small r हो जाएगा. Integrate if I am not wrong. This will become 4. बताइए मुझे क्या आएगा इसको. और इसमें भी कुछ जीरो आएगा. बताओ मुझे. What you will get? R plus R minus R plus this is 2R. और ये कितना हुआ जी बताओ मुझे. Integration of this will become x minus r square by x. Tell me, evaluate and see what you get inside points.
x minus r square minus r square by x, put the limits r minus r to r plus r, और बताइए मुझे क्या आया, 0 आ गया ना, दिस इज 0। लिमिट डाल के देख लीजिए भाई साहब, डाल लिया, कैसे उसने कह दिया तो लिख लिया। पास होने के लक्षण नहीं है, बार बार बता रहा हूं, दूसरे के कहने पे तो चलते हैं, उस एग्जाम को कभी पास नहीं करते, कभी नहीं। जब मैं ऐसी बात कह रहा हूं तो एकदम बहुत ध्यान से सुनना। जो आदमी, जो व्यक्ति दूसरे के कहने पर चलता है वो कभी सिविल सर्विसेज एग्जाम पास नहीं करता है। इन्होंने बता दिया, तुमने लिख लिया, भैया पास होने के लक्षण ही नहीं है। हर चीज अपने आप चेक करके देखनी पड़ती है, क्यों कुछ और होगा, आप मैथमेटिक्स कर नहीं पाएंगे। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। गुड, सो इनसाइड पॉइंट इट इज 0। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या हो जाएगा इनसाइड पॉइंट में, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल है क्या, माइनस dv बाई dr r। तो dv इज नथिंग माइनस e डॉट dr। गुड, दिस इज 0, आउट 0 हो गया कि नहीं dv, e is 0, then e dot dr is 0, dv is 0, that means v is constant, v is constant. So constant means whatever was at surface, same thing will be at the inside also, same thing will be inside also। अभी बना रहे हैं जी, E is 0 means dv is 0 means v is constant, v is constant means equipotential surface। What is this called, equipotential surface। Try to understand and appreciate, dv is 0 not v is 0, dv is 0। Good, चलिए जी, this was spherical cell, I am completing। This was your r, this is smaller। What was the field at the inside points, 0, field था 0। If I draw field inside points is 0, वहाँ पर ऐसा था, यहाँ 0 है। Now only field is at this point, this is what, it is 1 by r square, r greater than r, 1 by r square। सरफेस में कितना, माइनस gm by r square, surface it is minus gm by r square। Good, what is the potential, यहाँ पर कितना है, माइनस जी एम बाई आर। सरफेस में पोटेंशियल कितना जी, माइनस जी एम बाई आर, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पर भी माइनस जी एम बाई आर है। Potential is constant, so whatever is the potential at the surface, same is the potential inside। r is equal to 0, also it is minus gm by r, that is why dv is 0। This is called equipotential surface, and afterwards it is 1 by r, afterwards it is 1 by r, that is what is the departure। वहाँ पर कैसा था पोटेंशियल, सॉलिड स्फीयर, पैराबोलिक था। कैसा था जी, पैराबोलिक। ये इज इक्विपोटेंशियल, फील्ड इज 0। दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यही 3 टॉपिक लिखे थे ग्रेविटेशन के, पूरे डिटेल में बता दिए। डेरिवेशंस ऑफ स्फेरिकल सेल एंड फ्रॉम द फंडामेंटल्स आई हैव डन। एग्जैक्टली दिस कुड बी वेरी शॉर्टली, इट कुड हैव बीन डन बाय द गॉसेस थ्योरम। 3 लाइन में आ जाता फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। इफ दे हैव नॉट स्पेसिफाइड, यू आर फ्री टू डू फ्रॉम एनी मेथड। गुड, चलिए सीट कर लीजिए, खत्म हो गया चैप्टर पूरा। आई हैव डन सेंट्रल फोर्स मोशन, ए टू जेड सेंट्रल फोर्स मोशन, केपलर्स लॉज, central force motion, Kepler's laws and gravitation। In the gravitation they have written potential and field due to spherical objects, Gauss's theorem, Poisson's theorem and gravitational self energy। Formula substitution problems are only asked, nothing else। क्या formula substitution।
Get to the tutorial sheet number 2. Finished. क्या? बहुत अच्छा है जी। ये दो कोई बात नहीं। ये देखिए, आप इस स्फेरिकल सेल को विजुलाइज कीजिए। करेक्ट, हमने कोई मास उसके सिर्फ पेरीफेरी में है, मास सिर्फ पेरीफेरी में है। फॉर द आउटसाइड पॉइंट्स, दिस इज आउटसाइड, आउट फर्स्ट अंडरस्टैंड आउटसाइड पॉइंट, इनसाइड विल बी सिंपल। करेक्ट, दिस मास एलिमेंट विच आई एम कंसीडरिंग, ये जो सरफेस पे मास है, इधर भी होगा, दूसरी साइड भी होगा। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, वन एक्सट्रीम कुड बी हियर, मास एलिमेंट कुड बी एट दिस एंड, अदर सिमिलर अपोजिट कहां होगा उसका अपोजिट? wherever I consider this, if this is one point, other point will be like this. If this is A, other point will be A dash. ये समझ में आ गया क्या? This is the mass element I am considering. This distance is x. Now, if the mass element is here, this distance I will call x. Correct? So what is the value of x? If the element is here, कहीं ना कहीं तो होगा ही ना पूरे पेरीफेरी में. If the element I consider here, अगर यहाँ कंसीडर करता इसका अपोजिट इधर होता, here is this, so what is this coordinates? This total, this is the center. This total distance is small r. Center से this distance is small r, correct? This is capital R. ये distance कितनी हो गई? अरे पहले समझ में आया ना पॉइंट यहाँ पर, इसका अपोजिट क्या हो जाए? A dash. This is small r, this is कैपिटल आर, तो क्या होगा इस पॉइंट का? स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर. तो इट इज गोइंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम दिस ए विच इज आर माइनस आर टू आर प्लस आर. दिस इज फॉर आउटसाइड पॉइंट्स. क्या जी? दिस इज फॉर आउटसाइड पॉइंट्स. इफ द पॉइंट इज इनसाइड, दिस इज द मास एलिमेंट, दिस इज द सेंटर. इफ दिस इज हियर, दिस इज पी, दिस डिस्टेंस इज आर. क्या जी? दिस डिस्टेंस इज योर आर. गुड. नाउ मास एलिमेंट वन एक्सट्रीम कुड बी हियर, अदर मास एलिमेंट exactly opposite mass element could be at this side, symmetric elements, correct? A dash. Here, what is the distance of this from here? This was your capital R minus this small r to capital R plus this small r. That is how the limits have to be put. ठीक है जी? Open the sheet. Sheet number 2. Do the last problem first, so that they are not lost. Question number 14. There are 3 questions in 2024, maybe 2 10 marks. 3 questions in 2024 from this chapter only. Question 14, 15, 16. All the 3 from central force, motion and gravitation. Briefly discuss the Kepler's laws of planetary motion. All the 3 laws I have said. 10 mark question, 1 page derivations can be easily given. Kuch nahi hai, nothing. Then second part. So that escape velocity on the surface of Earth is given by root 2 gr, where g is this, r is the radius of the Earth. कैसे escape velocity निकाली थी? Total energy is 0. Then it will be escape route, path will become parabola. Total energy is 0, that means kinetic energy is equal to potential energy. Good. Half mv square is gmm by r, and substituted you got root 2 gr. Now for Earth, r you can take at the radius of the Earth, you can calculate 11.2 km per second standard, nothing. For any other planet also I have told you to calculate. क्या था ये था ना, VE किसको कहा था हमने? root 2 gm by small r. Small r was the variable distance between capital M and small m. For planetary motion, capital M is the mass of the sun. It doesn't depend upon the mass of small thing. In only small r you should know. Small r was the distance between capital M and small m. So if you know center to center distance of sun from that particular planet, you can easily calculate the escape velocity for any planet to escape the gravitational attraction of sun. किसकी escape velocity है? Who is binding? Sun. 1 by r square motion. Good. Next. 16. 2 satellites A and B have same mass or orbiting the Earth at altitude of r and 5r respectively, where r is the radius of the Earth.
assuming their orbits to be circular, calculate the ratio of kinetic and potential energies. What is the ratio of kinetic energy and potential energies? Does it depend upon mass and radius? Good. But what is the ratio? Ratio is fixed. Ratio is fixed. बताया था सर्कुलर ऑर्बिट, याद भी कराया था. करना कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं करना है. सेंट्रल फोर्स मोशन में 2t plus v is 0. T is the kinetic energy. Classical mechanism में T is written as kinetic energy. So 2t plus v is 0. यही होगा हर जगह. ई सर्कुलर मोशन में क्या लिखवाई थी? टोटल एनर्जी सर्कुलर मोशन की कितनी थी? माइनस GMM/2r थी. पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? माइनस GMM/r थी. कुछ करना है नहीं. फोर्स इज GMM/r स्क्वायर. इंटीग्रेट के पोटेंशियल एनर्जी इज वेरी सिंपल. पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस. माइनस F.dr. इट इज GMM/r स्क्वायर dr. तो क्या हो गया जी? पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM/r. काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई अपने आप? टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी. टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी. तो माइनस माइनस प्लस हो गई. GMM/r कितनी हो गई? GMM/2r. सर्कुलर पाथ में यही थी. दिस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. v आ जाएगा आपको √2 GM/r. 11वीं क्लास का है. अगर ये सब सोचने में किसी को लग रहा है कि बड़ा कठिन है, तो बेटा फिजिक्स नहीं चलेगा. समझ गए? दिल, सिर्फ क्वेश्चन किससे पूछना है? अपने दिल से. अगर मुझे लग रहा है कि ये सब बड़ा कठिन है, चलेगा नहीं. इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का बेस्ट क्राउड फिजिक्स में ही बैठता है. अभी ये क्राउड बेस्ट नहीं है. मैं ऐसे कह देता हूँ कई बार, लेकिन ये क्राउड बेस्ट नहीं है. बेस्ट जो मेंस देने बैठता है ना, वो बेस्ट क्राउड होता है. क्योंकि जिनको मैं टेढ़ा होकर बोलता रहता हूँ, वो तो कहाँ फेल हो जाएंगे? प्री में ही फेल हो जाएंगे. 70%, 70% तो प्री में ही फेल हो जाएंगे. और वो रियलाइज करेंगे 2 साल के बाद. जो सब गलत रास्ते में चल रहे हैं, मतलब जो ऐरा गहरा अपना दिमाग नहीं. फिजिक्स के अधिकांशतः लोग कोई जीएस की कोचिंग नहीं करते. बड़ी बात बता रहा हूँ बार बार. जो इधर उधर जीएस की कोचिंग करे, 99% को फेल ही हो जाना है. मेरे थंब रूल हैं जिंदगी के. मतलब उनका खुद का दिमाग नहीं है, वो किसी भेड़ चाल पर चल रहे हैं. भेड़ चाल पर किसी ने बताया, इसलिए वो चल रहे हैं. और ये एग्जाम रोज बताता हूं, रोज बताता रहूंगा. और ऐसा व्यक्ति हूं कि जब भी देखना कि यहां पर टॉपर आएगा, साला पैरी छुएगा आके. और मैं रोज टेढ़े होकर बात कर रहा हूंगा. और बाकी किसी के कोई हाथ भी गाली देते हुए मिलेंगे बाकी लोगों को. यहां पर बड़े बड़े नाम होंगे और स्टूडेंट जहां 50 इकट्ठे हो जाएंगे, क्या दे रहे होंगे एक दूसरे को? गाली. और यहां पर आके सीधे चरण वंदन करेगा आके. क्यों? क्योंकि मैं हमेशा जो सत्य है वही बोलता हूं. सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलता. ये एग्जाम खुद के दिमाग का एग्जाम है, खुद के दिमाग का. इफ योर आईज एंड ईयर्स आर नॉट ओपन, इफ यू कैन नॉट फाइंड आउट व्हाट इज द ट्रुथ एंड व्हाट इज अनट्रुथ, व्हाट यू रिक्वायर, व्हाट यू डू नॉट रिक्वायर, इज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. लाइफ हैज गॉट वेरी कॉन्स्टेंट रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. दिन में 24 घंटे हैं, सिर्फ हर एक के लिए हैं. मैं रोज अपने घर में उठ के ही कहता हूं, दिन में 24 घंटे हैं. दिन कैसे डिफाइन करते हैं? कोई बता सकता है? दिन किसे कहते हैं? दिन, डे. व्हाट इज डे? Every term has got standard definitions. डे क्या है? डे. दिन क्या है? दिन भी कुछ ना कुछ तो होता होगा ना. What is day? Time to complete one routine. Good. What is day? Time between sunrise to sunset. बस सिंपलेस्ट बता रहा हूँ. What is day? Most efficient use. आपने कभी देखा है मेरे ऑफिस में लाइट जलती हुई? कभी देखी है? कभी? डिड यू एवर विजिट माय ऑफिस? मेरे कमरे में जब आओगे तो कभी देखा कि मैं लाइट जला के बैठा हुआ हूं? मैं हमेशा कर्टन खोल के फ्री की लाइट का आनंद लेता रहता हूं, फ्री की लाइट का. एंड आई से आई एम रिसोर्स सेविंग द रिसोर्सेस. विटामिन डी भी बचा रहा हूं, बी भी खा रहा हूं. घर में भी अपना पूरा सनलाइट खोल के बैठता हूं.
क्योंकि जो विटामिन डी जो आता है ना, वो धूप में खाने से सन टैन होता है। विटामिन डी जो मिलता है ना सवेरे ही सन रेज में ही होता है। तो डे टाइम को जिसने मिसयूज किया, इसका मतलब पहले ही रिसोर्सेज का वेस्ट कर रहा है। जो रात को सो रहा है वो क्या कर रहा है? वेस्टिंग द रिसोर्सेज। बिजली भी तो कोई ना कोई खरीदता होगा ना, आप खरीदते होंगे, नहीं तो कोई दूसरा खरीदता होगा। जहां पे भी ज्यादा बिजली खर्च होगी तुमको उतना ज्यादा चार्ज ले लूंगा मैं। अगर मेरा बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा तो क्या करूंगा? और बढ़ा दूंगा। So why not use the little resources? Utilize the daytime. I get up very early in the morning and I go to bed by 11 o'clock. एकदम सो जाता हूँ पूरे दिन में मैं देखता हूँ हाउ मेनी आवर्स प्रोडक्टिवली आई हैव यूज्ड। अगर मैं किसी से कॉपी जचवाता तो मैं सोचता 500 रुपये खर्च करता। मैंने 10 कॉपी जांच ली दिन में, क्या कर लिया भाई साहब? 5,000 रुपये तो बचा लिए ना। ऐसे गुणा और रोज खुश होकर कहूंगा मैंने आज 15 कॉपी जांच दी। किसी को 7,500 रुपये देने पड़ते मुझे, और चिरोरी और करनी पड़ती, और वो जांचता कि नहीं जांचता पता नहीं, कैसा जांचता, लड़के बड़े। अब मुझे सब कुछ मालूम है। अब मैं कॉन्फिडेंटली गाड़ी में बैठ, मेरी बहुत गंदी हैंडराइटिंग में कॉपी जची हुई तुमको मिलेगी, क्योंकि कॉपी हिलती रहती है, गाड़ी हिलती रहती है, मैं कार में बैठ के कॉपी जांच देता हूँ। तो मैं कार में बैठे हुए टाइम को भी यूज करता हूँ, कार में बैठे हुए टाइम को भी मैं यूज करता हूँ। बहुत कैमरे के सामने बोल देता हूँ कि बहुत मेरी माई हैंडराइटिंग इज गुड नॉट बैड, बट जितनी जो मेरी यहाँ पर लिख रहा हूँ इसकी 1/4 खराब आती है, उसमें को हिलती रहती है कार, और मैं चेक करता रहता हूँ उसमें, और कमेंट लिखने हो तो वो भी लिख देता हूँ। अगर किसी ने कुछ गलत किया तो सीधा करना मेरा काम है। सो भाई हैंडराइटिंग अपीयर्स टू बी वेरी बैड। और सोचता होगा पता नहीं कैसे लिख रहे हैं। अब वो तो जान जाता है मैंने जांची है, क्योंकि तो इसलिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मैंने जांची है, लेकिन कार में बैठ के जांची है। तुम्हारी कॉपी मैंने कार में इतनी इंपॉर्टेंट थे कि तुम्हारी कॉपी में ले गया अपने साथ, जब टेस्ट हुआ। और ऐसे टॉपर्स की साथ की कॉपियों के साथ ही यही करता हूँ। जैसे कल टेस्ट हुआ, मैंने 10 कॉपी छांट ली, ऐसे देखी, और जिनको लग रहा है 125 से ऊपर दे रहा है। मैं अपना बीपी खराब नहीं करता। मैं जब गाड़ी में बैठ कर जांचता हूँ तो डिस्टर्ब नहीं रहता, बहुत खुश स्टेट में रहता हूँ। तो खुश स्टेट में रहने के लिए अच्छी वाली कॉपी छांट लेता हूँ, जिसको 125 से ऊपर देना होता है। और जब घर में बैठा हुआ हूँ शांत होकर रूम में अपने, तब मैं 100 के नीचे वाली जांचता हूँ, और पहले मेरा सेट कर लेता हूँ 100 के नीचे आने वाले, फर्स्ट आई नो। जैसे अभी मैंने बता दिया कि जिसको प्रीलिम्स में 75 से नीचे टेस्ट सीरीज में आता है वो नॉर्मली प्री फेल हो जाते हैं। सब मेरे डिक्टम्स एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ऐसे ही मैंने कॉपी झाड़ने के बाद देख लेता हूँ कि किसको क्या देना है और किसको कब जांचना है। गाड़ी में बैठ के आई कीप ऑन कलेक्टिंग मोस्ट ऑफ द आंसर शीट विच विल बी लाइंग इन माई कार, यू विल सी देयर आर 125 प्लस। चलिए ठीक है जी, हो गया, मालूम पड़ गया। अच्छा तो के ई और पी कुछ करना है मुझे। देखिए यहाँ पे दोनों में देखिए 2t + v0 हो गया कि नहीं। दिस इज कॉल्ड विरियल थ्योरम, वैसे भी याद कर लीजिए, दिस इज कॉल्ड विरियल थ्योरम। ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज v + v इज 0, v इज ठीक है 2t, ठीक है कि नहीं। 2t + v हो गया कि नहीं, gm/2 यार, 2t + v इज 0, 2t + तो t/v क्या हो गया, t/v हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ। काइनेटिक एनर्जी से अगर वो देखना है, रेशियो निकालना है आपको, t/v तो क्या जी, माइनस हाफ माइनस हाफ। कहीं मास वास है क्या इसमें? कहीं मास है इसमें? कहीं इसमें r है? नहीं है, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। कुछ नहीं करना था। ये चीज़ तो जिसने ऑब्जेक्टिव किए होंगे 11वीं क्लास के, वैसे ही याद होगा। 11वीं क्लास में जिसने ऑब्जेक्टिव करे होंगे उसको वैसे ही याद होना चाहिए। तो आंसर तो सिर्फ सेट है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन देना है उसको। ओनली एक्सप्लेनेशन हैज टू बी गिवन। गुड, नेक्स्ट हो गया जी। ऊपर जाइए, ये देखते जाइए, पहले ट्रेंड समझिए। 24 में 3 क्वेश्चन आए 10 मार्क्स के। 23 में 2 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 12 एंड क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 12 में क्या है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ अर्थ। क्या है, जम्पशन है, व्हाट इज ग्रेविटेशन, डेफिनेशन लिखनी है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द अर्थ ऑफ रेडियस आर। यू विल assume अर्थ टू बी व्हाट, स्फेरिकल बॉडी। अर्थ इज जस्ट लाइक एन स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी, हैविंग
यूनिफॉर्म डेंसिटी क्या है, -3/5 gm स्क्वायर बाई आर, कैपिटल आर इज गिवन टू यू, em इज आल्सो गिवन टू यू, मास ऑफ द अर्थ इज आल्सो गिवन टू यू, करेक्ट। तो ये कौन नहीं सही करेगा, ये फार्मूला किसको याद नहीं होगा, सबको याद होगा। क्रक्स क्या है, आंसर, बहुत कईयों को तो आंसर भी याद होना चाहिए, भी किताब में दिया होगा और पहले भी 11वीं 12वीं में याद किया होगा, तो आंसर भी याद होना चाहिए आपको। न्यूमेरिकल का आंसर करेक्ट होना चाहिए। इफ इट इज 5 मार्क क्वेश्चन आई विल गिव यू 3.5 मार्क्स ओनली व्हेन आंसर इज करेक्ट। फॉर राइटिंग डाउन -3/5 gm स्क्वायर बाई आर आई विल गिव ओनली 1 मार्क आउट ऑफ 5। फार्मूला लिखने के अगर आप सोच रहे हो कि मैं 5 नंबर में कुछ दे दूंगा, तो आई एक्सपेक्ट एवरीबॉडी शुड नो द फार्मूला। डेफिनेशन लिख दी, आधा नंबर और दे दूंगा, 1.5 मार्क्स। व्हेन आई एम गोइंग टू गिव यू 3 मार्क्स आउट ऑफ 5 when the answer is correct with the proper units। ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी जूल में आएगी, किस में आएगी, जूल में आएगी ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी। डायमेंशन भी लिखी रहनी चाहिए, डायग्राम बना होना चाहिए। एजम्पशन, दो एजम्पशन हैं, अर्थ को हमने एज्यूमिंग अर्थ टू बी एन स्फेरिकल बॉडी एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, which is not there but we will assume that correct। then next part, derive expression for gravitational potentials आउटसाइड द स्पेरिकल सेल। सिर्फ पोटेंशियल ही पूछा है, सिर्फ पोटेंशियल ही पूछा है। आउटसाइड द स्पेरिकल सेल -gm बाई स्मॉल आर, इनसाइड द स्पेरिकल सेल, इनसाइड द स्पेरिकल सेल वो भी -gm बाई कैपिटल आर है, क्या जी, -gm बाई कैपिटल आर। कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून। मून के सरफेस में एस्केप वेलोसिटी चाहिए, गुड, तो निकाल लोगे भाई, √2 दिया, जी दिया है वहां पर, जी विल बिकम जी ऑफ द मून। रूट एस्केप वेलोसिटी क्या थी, √2g कैपिटल M बाई आर, गुड, gm, g इज इक्वल टू gm बाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो लिख दोगे फार्मूला सॉल्यूशन करेक्ट। दोनों चीजें दी हुई हैं। सो नथिंग 23 20, उससे पहले क्या है 22 में क्या है, ओनली वन क्वेश्चन, ओनली one question। What is this question? An electron is moving under the influence of point nucleus of atomic number Z, so that orbit of an electron is an ellipse। This question is repeat। ये 22 का है, and same question has been asked earlier also। 14 में है, so that the particle is ellipse, find the time period of motion, good। So that ellipse, an electron is moving, an electron is moving under the influence। फोर्थ में नहीं कहा था कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, उस क्वेश्चन में क्या, व्हाट इज कौन सा था, 14 का ना, कौन सा क्वेश्चन था, फोर्थ था, चार्ज पार्टिकल मूविंग अंडर, वो चार्ज पार्टिकल कह रहा था, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन कह दिया है, गुड। व्हेन इट विल बी इलिप्स, व्हेन द मोशन इज इलिप्स। 99% का क्लास में गलत हो जाएगा ये, पहले से तुमको बता दिया मैंने, इसलिए आंसर बताओ, जो होशियार समझ रहा है मुझे आंसर बताए। इट इज 10 मार्क क्वेश्चन, आई कैन गिव यू 6 इजीली। व्हेन द चार्ज पार्टिकल is moving under the influence of, question, moving under the influence of point in nucleus, there is a point in nucleus, there is a point in nucleus plus ZE, and there is a charge particle, this is charge particle, correct। When the path will become elliptical, हाँ ठीक है, तो eccentricity will be also less than 1। चलिए, एक नंबर दूंगा, सिर्फ ओनली 1 मार्क। एवरीबडी नोज दिस। This is not the answer। I require 2 points of this answer। 2 points हैं इसके, 2 points। Answer comprising of 1, 2। This point 3 marks, this point 3 marks, 6 marks। उसके बाद ऊपर नीचे है कुछ। पार्टिकल की वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से कम और ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। अब वो तो मास के, हाँ ये तो होनी चाहिए, v इज लेस देन योर v। क्वेश्चन नंबर 4 है, दोनों में, लेकिन एक में इलेक्ट्रॉन को
चलिए उसको छोड़ दे, मैं पहले 4 को आंसर कर रहा हूँ, वो तो दूसरा वाला सिंपल है, थोड़ा ज़्यादा सिंपल है वो। उसमें तो इलेक्ट्रॉन भी कह दिया, दूसरी बात उसमें टाइम पीरियड भी नहीं कैलकुलेट, इसमें टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कराया आपको। डू द क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज द बेस, ये तो होना ही है, इज द बेस। दिस एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन टेल यू दैट इफ एनर्जी इज लेस देन 0, eccentricity will become less than 1. Yes. It should be attractive force. First important thing is that, देखो, try to see in physics fundamental is what? Force. उसमें नहीं लिखा हुआ है, इसमें चार्ज पार्टिकल है, प्लस क्यू से कभी नहीं बनेगा है। गुड। क्वेश्चन 4 इज ओपन एंडेड, क्वेश्चन 11 इज लिटिल क्लियर कि इलेक्ट्रॉन कर दूंगा तो फोर्स विल बी ऑलवेज बी अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स हैज टू बी अट्रैक्टिव। देखो ये क्रक्स है, एनर्जी को निगेटिव होना है। एनर्जी क्या है जी? हाफ mv² ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, हाफ mv² इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। इफ द फोर्स इज रिपल्सिव, इफ दिस वुड हैव बीन a positively charged particle, then the potential energy will be also positive. अरे समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं भैया? अगर एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, देन द फोर्स इज ऑफ रिपल्सन, पोटेंशियल एनर्जी विल बी रिपल्सिव, दैट इज पॉजिटिव क्वांटिटी। दिस इज आल्सो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो गई आपकी, तो टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो गई ना, पाथ विल बिकम हाइपरबोला। सो एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज दैट इट फोर्स मस्ट बी अट्रैक्टिव, दैट मीन्स द पार्टिकल मस्ट बी नेगेटिव पार्टिकल। पहला आंसर है कि पार्टिकल मस्ट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फॉर ऑर्बिट टू बी इलिप्टिक। ग्रेविटेशन में सारी इलिप्टिकल है, क्यों है? क्योंकि फोर्स इज ऑलवेज ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट। सो नेचर ऑफ फोर्स इज दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव 1/r² फोर्स, फोर्स इज अट्रैक्टिव, दैट मीन्स द चार्ज पार्टिकल मस्ट बी ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। गुड। नाउ व्हाट शुड बी द वेलोसिटी? Now have to talk in terms of velocity. वो हवाबाजी ना है कि E से ज्यादा और कम, अभी करेक्ट वैल्यू बताऊंगा आपको मैं। What is the velocity? Good. So अभी हो गया पहला पॉइंट हो गया, फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं ना फिजिक्स की? अट्रैक्टिव फोर्स ही तो फंडामेंटल है हमारे पास। अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब उसमें स्पेसिफाई कर दिया इलेक्ट्रॉन, सो दैट इट बिकम्स, नाउ आई हैव टू राइट डाउन वेलोसिटी। सो टोटल एनर्जी इज हाफ mv² माइनस k/r। k कितना है हमारा? यहाँ पर k क्या है? 1/4πε0 ZeQ। ZeQ not necessarily it is electron, it could be any negatively charged particle। so ये लिख दिया कि अब नाउ टोटल एनर्जी, इसका मतलब है हाफ mv² इज लेस देन k/r। फॉर टोटल एनर्जी टू बी नेगेटिव, total energy to be, eccentricity to be less than 1, total energy must be less than 0. That means half mv this, that means v is less than √2k upon mr। k की वैल्यू लिख दो, 1/4πε0 ZeQ upon mr, where m is the mass, r is this। When the velocity is less than this, then the path will become elliptical। Velocity has to be also specified, no ve something, you have to write in terms of this charge। whatever इलेक्ट्रॉन होता तो वहाँ लिख देता, वहाँ Ze² लिख देता, Ze²। करेक्ट? समझ में आ गया भाई साहब? समझ में आ गया? दिस फिजिकल डेटा वी हैव टॉक्ड, v is less than √2k m/mr। what is k? k already I told you 1/4πε0 Ze into q। टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड वंस वेलोसिटी इज ऑब्टेन्ड, velocity is obtained, velocity is nothing r omega, 2π/t, 2π t is what? 2πr/v, 2π/t is omega, v is equal to r omega, लिख दिया। t is equal to nothing, 2πr/v। आपको v मालूम है, r के टर्म में लिख दीजिए, v मालूम पड़ गया ना, v is nothing √2k/mr, लेस देन दिस वैल्यू। Good, nothing. Next,
दिस इज योर 22. 21 में 21 the radius of earth is this, mean density is this, universal gravitation. Calculate the gravitational potential on the surface of earth. Calculate the gravitational potential on the surface of earth. Assuming earth to be, कुछ नहीं दिया था, earth to be spherical body, correct? So कितना है surface potential? माइनस जी कैपिटल एम बाई आर. डेंसिटी दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, कैपिटल एम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा जी? अगर दिया होता तो डेंसिटी का कोई फैक्टर नहीं है. माइनस जी फार्मूला सब्स्टिट्यूशन, फार्मूला सब्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन 9 पहले कर दिया जी, कर दिया कि नहीं कर दिया जी? क्वेश्चन 8 भी कर दिया. डिस्क एक्सप्रेस एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी किया था ना. एनर्जी इज mk² by 2j². गुड. पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी सैटेलाइट इन मास सर्कुलर ऑफ रेडियस आर कर दिया. अभी किया था थोड़ी देर पहले. क्वेश्चन 7 इज सेम एज क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 6 कर देखो. क्वेश्चन 7 क्या है? बॉडी मूविंग इन एन इनवर्स स्क्वायर अट्रैक्टिव फील्ड. इनवर्स स्क्वायर अट्रैक्टिव फील्ड ट्रैवर्सेस एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद एन एक्सेंट्रिसिटी ई एंड पीरियड गामा. इलिप्टिकल ऑर्बिट विद एक्सेंट्रिसिटी ई एंड पीरियड गामा. रहने दीजिए. फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉडी टू ट्रैवर्स द हाफ ऑफ द ऑर्बिट that is nearer the center of force. Half of the orbit which is nearer to center of force. ठीक है जी. सेम इज क्वेश्चन नंबर 1. देखो 2 बार रिपीट हुआ. क्वेश्चन नंबर 11 भी रिपीट हुआ था ना अभी. देखो थोड़ी देर पहले कौन सा था मैंने? क्वेश्चन 11. क्वेश्चन 11 वाज क्वेश्चन 4. नाउ क्वेश्चन दिस 7 इज एज सेम इज क्वेश्चन 1. दिस इलिप्टिकल ऑर्बिट. व्हाट, वेयर इज द सेंटर ऑफ फोर्स? सन. फर्स्ट पहला ला क्या है? सन इज एट द फोकस. दिस इज हियर. दिस इज योर सन. दिस इज सन. गुड. ऑर्बिट विच इज क्लोजर टू द सन. क्लोजर टू द सन मीन्स अगर ये माइनर एक्सिस पे प्लैनेट हो जाए आपके. दिस इज ए, दिस इज अपोजिट एंड. ए डैश, दे आर बोथ द एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस. यहां से क्या है? दिस मच. This much portion is nearer to the sun. This is the farther than the sun. This area is extra. Center of force. Force will be always directed from the center towards it. Planet could be anywhere. Force will be directed towards the center. Good. If the planet is near the minor axis, both the minor axis, then this much portion extra is traveled. एक तरफ का इसका अगर T1 है, इसका T2 है, so total is T. Then 1/2 will require T/2. आधा अगर ये पूरा होता है तो कितना टाइम लेता है इसको? T/2. Pi AB by 2 divided by dA by dt. dA by dt is a constant. Time taken is area swept divided by aerial velocity. Aerial velocity is a constant of motion J/2m. Good. First half area is same, this half area is same. So ज्यादा कब होगा? When planet is at the end of minor axis, then this much portion is different. So this side will take this much portion less, this side will have this much portion more. So only you have to find out the time taken by this much portion. Otherwise both of them are T/2. This is T/2 plus T dash, this is T/2. क्या दूसरे वाले में क्या है? समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं आपको? If the planet is at A and A dash, then how much is the area swept? Force is always considered from the sun. Sun is the source of all forces. In planetary system, sun is the source of all forces. That is why I am calling bigger body as the origin of force. गुड. क्लास में भी बताया था कि जो सबसे ज्यादा फोर्स किसके नाम पे लगता है? जो कॉलोनी का, मोहल्ले का सबसे बड़ा गुंडा होता है, उसी के नाम पे सबसे ज्यादा फोर्स होता है. उसको देख के लोग रास्ता बदल लेते हैं अपना. फोर्स लग गया कि नहीं? उसके घर के पास जाने की जरूरत नहीं है. उसको आपके ऊपर नजर रखने की भी जरूरत नहीं है. मालूम पड़ गया कि वो बैठा है, वो देख के ही आपके जैसे रास्ता बदल लेंगे. इंटरेक्शन हो गया. सो फोर्स इज ऑलवेज काउंटर्ड विद रेस्पेक्ट टू द हेवियर बॉडी. यहां रखा हुआ है, ये सन है, ये सन है, समझ लीजिए. और ये है माइनर एक्सिस. इसका भी इतने का टाइम कितना है? T/2 है. इतने का टाइम कितना है?
t/2 है, दोनों का एरिया सिमेट्रिक है उसके रेस्पेक्ट में, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो अगर इतना पोर्शन एक्स्ट्रा हो गया, if I say time taken in sweeping this much area is t dash, planet is here or here, t dash, this will become t/2 plus t dash, this will become t/2 minus t dash. So किसी आप पे ज्यादा किस में होगा, इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, तो t dash, what is t dash? Time shift, time taken or time shift, time taken by the planet. When it is near the minor axis. Good. गुड। टी कितना था, व्हाट वाज टी? गामा बोला है, टी बोला, क्या है जी? पाई ए बी बाई डी ए बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी आ गया मेरा। डी ए बाई डी टी इज नथिंग पाई ए बी बाई टी और गामा वट एवर यू वांट टू कॉल, ये निकल गया। हाउ मच टाइम दिस एरिया विल हैव? व्हाट इज द एरिया? एरिया सेफ्टी है, एरिया कितना हुआ? ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल, ये कितना है जी? 2b है। और ये कितना, हाइट कितनी है इसकी ट्राइंगल की? ए ही है, डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट? सो इट इज नथिंग E इंटू दिस इज द एरिया सेफ्ट। गुड, एरिया सेफ्ट, एरिया सेफ्ट डिवाइडेड बाई एरियल वेलोसिटी। Question number 4 was more explicit. Question number your 11 was more explicit than question number 4. था कि नहीं? Question number 11 was more explicit. इलेक्ट्रॉन कह दिया था, तो आपको सिर्फ वेलोसिटी के टर्म में बात करनी है। Same way question number 1 is more explicit than question number your 8. जो भी हमने किया है question number 7, question number 1 is more explicit. क्या कह रहा है? Planet revolves around the sun in an elliptical orbit of eccentricity e. If t is the time period of the planet, find the time it spends by the planet between the ends of minor axis closer to the sun. यहाँ जब है ये the sun, when it is closer to the sun ends of the minor axis, इसमें कितना टाइम लगाता है? t dash। तो t dash निकालना है इसका। एरिया आ गया, by the time taken t dash, टी डेज कुछ नहीं हो गया, एरिया शिफ्ट डिवाइडेड बाय एरियल वेलोसिटी। एरिया शिफ्ट बाय एरियल वेलोसिटी, से एरियल वेलोसिटी इज नथिंग पाई ए बी बाई टी। सब कुछ नहीं है जी, ई बाई पाई टी। समझ में आ गया भाई साहब? कितना? ई बाई पाई इंटू दिस। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, नथिंग। नेक्स्ट में क्या था, उसका दूसरा पार्ट क्या था? नथिंग। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी इन वर्सेस दिस इज सेंटर ऑफ द फोर्स। एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाई ए कॉमेट स्पेंड्स ओनली 18% ऑफ इट्स टाइम ऑन द हाफ ऑफ इट्स ऑर्बिट दैट इज नियरर टू द सन। व्हाई इट इज 18% ऑफ द टाइम्स? व्हाई दिस इज 18%? 0.18 ऑफ टी। यही कह रहा है ना, इफ देयर इज एनी कॉमेट it spends only 18% of this. यही टाइम एक्स्ट्रा है ना, इधर से लोगे तो एक्स्ट्रा है, फ्रॉम दिस साइड इट इज लेस दिस टाइम इज 18% मोर देन दिस। इफ इट इज t/2 इट इज। क्वेश्चन समझना है, आप समझ नहीं पा रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रीलिम्स का पेपर भी नहीं समझ में आएगा। 18% टाइम्स इट टेक्स मोर। क्वेश्चन यूपीएससी का आ गया है और एक किसी किताब में सॉल्व किया हुआ ना मिलेगा कि किताब में सॉल्व करके कोई दे देगा आपको। मैं तो दे रहा हूं आपको। यही एक्सेस हो गया ना, दिस एक्सेस इज 0.18 टी। गुड गुड। क्या होगा इससे? ई की वैल्यू आ गई, एक्सेंट्रिसिटी आ गई। उसने कहीं स्पेसिफाई करी थी? नहीं करी थी। कह दो इफ द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट इज दिस, देन इट विल टेक 18% मोर टाइम। आंसर्ड और नॉट? This time, if it would have been other side, it is 18% extra. This side is 18% extra, means this time is 0.18.
T. 0.18 T. You have calculated. देखिए या तो एक्सेंट्रिसिटी का डेटा दिया हो, एक्सेंट्रिसिटी का डेटा दिया हुआ तब आप एक्सेंट्रिसिटी का डेटा डालो, सब कुछ लिखा हुआ है, तब आप बताओगे दिस इज 18% ऑफ दिस. नहीं दिया हुआ है डेटा, नहीं दिया हुआ है डेटा. So whatever suitable assumption you have to make in the beginning they have written, you have to justify the answer. It is 0.180. So I say eccentricity of the orbit is this much. इसको 0.180 लिख दिया मैंने. I have said eccentricity of the orbit is this much. 0.18 into pi, whatever the data, then it will devote 18% time extra. Good. Next बताइए जी. Question number 6 already I have done. Question 5 already I have done. Question 4 already I have done. Question number 3 already I have done. Question number 2 already I have done. Question number 1 already finished. 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 कोई भी क्वेश्चन कठिन था क्या? कोई भी क्वेश्चन कठिन था क्या? Was any question difficult? If you know the theory, whatever has been specified, did they ask anything other than whatever has been written into the syllabus? आप रीड द सिलेबस, उसमें लिखा हुआ है. ग्रेविटेशन में क्या लिखा हुआ है? 2 ही 3 बातें लिखी हुई हैं. फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्पिरिट. किसी और बॉडी का पूछा क्या? जो भी न्यूमेरिकल भी पूछ रहा है तो अर्थ का पूछ रहा है, किसी का पूछ रहा है जहाँ पर स्पेरिकल बॉडी एज्यूम करना है आपको. ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी की कैलकुलेशन पूछ रही है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन है -3/5 gm²/r. अगर आपको नहीं, और उसमें भी भूलने का कोई मतलब नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी ही तो है. पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? -gmm/r होती है. और किसी स्पेरिकल बॉडी की होगी तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R हो जाएगा. gmm दोनों को बराबर कर दो तो -gm ओनली 3/5 का फैक्टर है, तो आपको याद रखना है -3/5 gm²/r. बोलने का कोई मतलब ही नहीं है. फर्मी एनर्जी भी 3/5 EF0 होती है, तो 3/5 3/5 मीन्स ओनली 60%. 3/5 मीन्स 60%. 0.6 फर्मी एनर्जी, एवरेज फर्मी एनर्जी ऑफ फर्मियंस इज जस्ट 3/5 EF. चलिए जी, आपको नहीं मालूम, खत्म. नेक्स्ट टॉपिक इज TS3. Next topic is TS3. And by the end of TS3, whole syllabus is over. Unit 1 is finished, Unit 2 is also finished, then only thing is left out is rigid body dynamics. आप पूरा सिलेबस पढ़िए और बताइए मुझे क्या बचा हुआ है. Read the first syllabus. TS3 I am dealing with rotating frame of reference. Rotating frames of reference, Coriolis and centrifugal terms. And already I told you rotating frame of reference is an accelerated frame of reference. They will have acceleration. And क्योंकि सर्कुलर मोशन में -ω² तो होगा ही होगा. Acceleration in r theta coordinate was this. Circular motion means r is constant. सर्किल मतलब r is constant, r dot is 0. एक और पूंछ लगा दिया मैंने, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, थीटा डॉट इज आल्सो कांस्टेंट. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या? सर्कुलर मोशन r is constant, r dot is 0, theta dot is also constant. Correct? If theta dot is constant, theta double dot is also 0. Theta double dot is also 0. So simple, r double dot is 0. So A turns out to be -r theta dot square r. ये भी खत्म हो गया. ये 11वीं क्लास का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उसी से प्रेडिक्ट कर दिया मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन.
सर्कुलर मोशन है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर तो होना ही होना है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, नीदर आर डॉट थीटा डॉट नॉट आर थीटा डबल डॉट। सर्कुलर मोशन में ये टर्म तो हमेशा जीरो होगा आपको, ए विल बिकम माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आर प्लस आर एल्फा थीटा। इफ इट इज नॉट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ इज नॉट ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये टर्म तो होगा ही होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, and this term is zero in circular motion, r dot is zero circular motion, non uniform, theta dot is also changing, theta dot is not constant, double theta dot exists, r alpha हो गया, acceleration term है, rotational motion में acceleration यही होता है, so acceleration is two terms, omega square r plus this, second term exists when the motion is non uniform, circular motion from the same formula. So now circular motion, ये और एक बात ध्यान रखना, जो मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे कुछ भी लिख सकता हूँ, एनीथिंग आई कैन फाइंड आउट, होल सीट पूरे किताब मेरी नज़र में फार्मूला सब्स्टिट्यूशन है। और कोई अगर क्वेश्चन छूट गया हो तो मुझे बता दो लाके कोई छूट गया है सर जी, पिछले 30 साल के क्वेश्चन दे गया हो, मैंने कितने टॉपिक खत्म कर दिए, कंजर्वेशन लॉज खत्म कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लेफ्ट फ्रेम टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम खत्म कर दिया, डिफरेंशियल स्केटिंग क्रॉस सेक्शन रदरफोर्ड स्केटिंग फार्मूला खत्म कर दिया, वेरिएबल मास सिस्टम खत्म कर दिया, सेंट्रल फोर्स मोशन खत्म कर दिया, ग्रेविटेशन खत्म कर दिया। इतने चैप्टर्स में से अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया हो तो मुझे बता दो कि सर जी उसमें छूट गया है, 100 रुपए दूंगा। क्या 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 कहा? 100 रुपए मेरे से लो और खुश रहो, मुझे भी खुशी होगी, कम से कम 2 क्वेश्चन और जुड़ गए सीट में। इसके बाद भी कोई लेके नहीं आता है, तो नहीं लेके आता है तो गलती किसकी, तुम्हारी है मेरी? 100 रुपए का इनाम है, इनाम है, कोई गुस्से कोई दुखी हो गया नहीं बोल रहा हूँ, इनाम दे रहा हूँ। अगर कोई छूट गया मेरे आउट ऑफ मतलब प्लेन साइट स्लाइट हो गया, स्लाइट ऑफ हाइज की लगाया, टाइप पिस्ट ने नहीं किया या वैसे कर दिया तो बता दो मुझे, मैं उनको भी लिख देता हूँ। जब मैंने पूरा सिलेबस इतना बढ़िया से क्वांटिफाई कर रखा है, पूरा सिलेबस की यही टॉपिक है, अभी पढ़वाऊंगा सिलेबस तुमको, क्योंकि अगली साल आज ख़त्म नहीं करूँगा, मैं कर ही नहीं सकता है। सोच लो ख़त्म कर दूंगा मैं, आपको कोरियोलिस फोर्स बता दूंगा, ये सब बता ही नहीं सकता, मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको सिलेबस पढ़ाना है, मुझे सिलेबस याद कराना है कि ख़त्म हो गया। देखो मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है, एडमिशन तो तुमने ले लिया तो तुम्हारा फीस तो कोई मेरा क्राइटेरिया है नहीं, वो तो जो आया उसको ले ही लेना है, जिसको तुम नहीं पढ़ोगे कोई दूसरा पढ़ने आएगा। मेरा इंटरेस्ट है कि तुम पास हो जाओ, जब पास हो जाओगे तो मुझे खुशी होगी, आई विल बिकम हैप्पी। मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, आई वॉन्ट टू मेक यू क्वालिफाई, मैक्सिमम सारे पास हो जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन मैं प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हूँ, आई एम ए प्रैक्टिकल पर्सन, मुझे मालूम है सब पास नहीं हो सकते, लेकिन मैं फिर भी डांटता रहता हूँ रोज़। अच्छी बात किसी को लगती नहीं है, बुरी बात ही लगती है, बुरी बात लोगों को हिट कर जाती है। और बहुत सारे जो प्री पास कर जाते हैं, एग्जाम पास करते कहते हैं आप रोज़ डांटते थे, रोज़ डांटते थे, आपकी बात भी चलो सर को गलत करना है सिद्ध, तो सर को गलत सिद्ध करो ना, कितना अच्छा है यार। आई विल वेरी हैप्पी, आई विल वेरी हैप्पी इफ यू प्रूव मी रॉन्ग समवेयर। मैं तो पास कराने के लिए बैठा हूँ, तुम अपने, और पास वही होता है जो खुद से एफर्ट करता है। एक बात और बताऊँ आपको, ये सोचो कि मेरे किसी दूसरे के एफर्ट करने से कोई पास हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। रोज मना करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, आई मेक एफर्ट्स, आई पुट माई ऑल एनर्जी, आई एक्सपेक्ट यू हैव टू पुट योर ऑल एनर्जी, दैट इज वाई आई कॉल माई क्लास एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म। मैं भी कहता हूँ ना एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म, आई ट्रांसफर माई ऑल एनर्जी। जितनी मेहनत मैं करता हूँ, जितना मैं चिल्लाता हूँ, तुम भी चिल्लाओ, बोलो। मैं अखबार कैसे पढ़ता हूँ समझ रहे हो? जब मैं अखबार पढ़ना सिखाऊंगा तो बोल बोल के पढ़ो भैया, मैं ये कहूँगा, ये मेरा कहना है हमेशा। Whenever you are reading an article of newspaper, read it boldly, so that your pronunciation also becomes good, because it is a holistic test. It is not the test of only your knowledge. Knowledge will be tested only in written part. But if you cannot speak, you know many things, but you cannot speak, your pronunciation is not good, then how it will improve? How it will improve? Concentration, how it will improve? आप किसी चीज को बोल बोल के पढ़ के देखो, थोड़ी देर में कंसंट्रेशन अपने आप आ जाएगा। तुम्हारा दिमाग कहीं चरने भी चला गया, कहीं इधर उधर भी चला गया, लेकिन तुम बोल बोल के पढ़ो और फिर क्या सोचो कि क्या क्या कह रहा है इसमें। मे बी फर्स्ट टाइम यू मे टेक 15 minutes,
एक बात और ध्यान रखना, कभी तुमने काउंट किया नहीं किया, जो अखबार का सेंट्रल स्पिरिट का मेन आर्टिकल होता है, कवर आर्टिकल मतलब एडिटोरियल के बगल वाला, यू नो हाउ मेनी वर्ड्स? न्यूज़पेपर के साथ वाला जो बड़ा आर्टिकल होता है पहला कवर, और उसको लिखने वाला इस देश का बड़ा आदमी होता है, देश का है दुनिया का बड़ा आदमी होता है, ओनली इंपॉर्टेंट पर्सन इज रिक्वेस्टेड टू राइट दैट जस्ट आर्टिकल अपोजिट टू द एडिटोरियल मेन आर्टिकल। हाउ मेनी वर्ड्स? काउंट करना आज जाके, फिर बताना हाउ मेनी वर्ड्स। कौन सा वाला अखबार है? अखबार है तो बता दूं, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कौन सा है। न्यूज़पेपर है किसी के पास? न्यूज़पेपर ही नहीं है, हम तो ऑनलाइन पढ़ते हैं जी। मैं 3 अखबार रोज खरीद के पढ़ता हूँ जी, आज नहीं लाया हूँ बस, नहीं तो भाई मंगवा लेता मैं। लाओ 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 दिखाओ, वहीं से भाई इतना कष्ट भेज दो, मूर्ख की तरह यहाँ पर आने की क्या जरूरत है, भेज दो किसी को। दिस इज द मेन आर्टिकल। बहुत अच्छा कर रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, सो नाइस सो नाइस। ये सेल्फी ऑफ द नेशन, ये सुहास पलसीकर ने लिखा है, पुणे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। दिस इज कॉल्ड मेन आर्टिकल, दिस इज कॉल्ड एडिटोरियल, दिस इज कॉल्ड एडिटोरियल। एडिटर लिखता है, एडिटर किसी की, मोस्टली दिस इज द जॉब ऑफ एडिटर। दीज 3 आर्टिकल्स विच इज रिटन बिफोर द मास्ट हेड, ये इसको कहते हैं अखबार का मास्ट हेड। बिफोर दैट वट एवर इज रिटन, दिस एडिटोरियल पीस, वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रीड देम। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आर्टिकल, दिस फ्रंट जस्ट एडजेसेंट टू एडिटोरियल। ये जो भी लिखता है वो देश का बड़ा इंटेलेक्चुअल होता है। यहाँ हमेशा जो भी आदमी का आर्टिकल यहाँ छप रहा होगा वो बड़ा आदमी है, तो एडिटर है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी है या कोई मिनिस्टर है, मतलब ही और सी इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन। इंटेलेक्चुअली दैट पर्सन हैज अराइव्ड ऑन द इंटेलेक्चुअल सर्किट ओनली व्हेन दिस आर्टिकल इज पब्लिश्ड। कभी इसको काउंट किया कितने वर्ड का होता है? सुहास पलसी का, आजकल तो सुहास इसका देश पांडे का, सतीश देश पांडे, इज ए रिटायर्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर। ये कितने वर्ड का आर्टिकल होता है? जाके काउंट करना, 1000 वर्ड का होता है। इस पूरे आर्टिकल को लिखोगे तो तुम्हारी हैंड राइटिंग में 8 से 10 पेज भरेंगे, 8 to 10 पेजेस। अगर इसको पूरा कॉपी कर लो, जाके चेक कर लो जाके तुम, इट इज 1000 वर्ड्स। This piece is 1000 words, and that is what I expect in UPSC essays, 2 such essays, and of the almost similar quality. इसमें बस bias हो सकता है, viewpoint, and your viewpoint has to be balanced. Almost same kind of flow of the words, same language, similar language I expect. क्योंकि इसमें बहुत बार IAS और IPS ऑफिसर्स के भी छपते हैं, बहुत बार छपते हैं। आप जो रेगुलर अखबार पढ़ रहा होगा देखेगा बहुत कई बार IAS IPS ऑफिसर का भी छपा हुआ है। So almost similar, मतलब they match the standard of these things. And when you are reading the newspaper, your English and your language must match the language of the newspaper. और उसी same flow is required, and same kind of content is required. See the main article, 1000 words. ऐसे 2 लिखने होते हैं एग्जाम में। So my advice is, जो भी लिखा है इसको जोर जोर से बोल के पढ़ो ना, कंसंट्रेशन अपने आप आ जाएगा। Then afterwards, this one such piece should not take more than 15 minutes. 15 मिनट से ज्यादा किसी को 1000 वर्ड को पढ़ने में और समझने में नहीं लगना चाहिए। लगता है क्या? लगता है, इसका मतलब योर कंप्रेंशन इज पुअर, यू हैव टू इंप्रूव योर कंप्रेंशन। इफ यू टेक मोर देन 15 मिनट्स इन कंप्रेहेंडिंग दिस पीस, दैट मीन्स योर कंप्रेंशन इज पुअर। आई कैन गिव इट एन एक्सरसाइज, अलग अलग जाके देखो, घर में जाके पढ़ के देखो। इसको पढ़ने में जो मेन आर्टिकल है 1000 वर्ड का है सिर्फ। ऐसे आर्टिकल को आपको 1 घंटे में लिखना है। यू हैव टू राइट सच एन आर्टिकल इन 1 hour, बिकॉज हाफ एन आवर तो आपको प्लानिंग करने में, सोचने में कौन से टॉपिक लिखना है। मुझे जो 4 ऐसे लिखे हुए ना, 8 ऐसे लिखे हुए हैं, 4 में से 1 में लिखना है, तो सोचने में भी 5 मिनट लगेगा। ये टॉपिक में जाए मेरे, आई हैव गॉट सफिशिएंट कंटेंट। हाफ एन आवर विल बी रिक्वायर्ड फॉर थिंकिंग, प्लानिंग। लिखना तो चिंतन का परिणाम है ना, चिंतन का। इट इज थॉट प्रोसेस, यू हैव टू राइट, क्रिएट ए थॉट। ऑल ऑप्शन, ये तो नहीं पहले से पढ़ के रट के कुछ बैठे हुए तो लिख डालेंगे ऐसे को। न्यू टॉपिक हैज कम, डेलिबरेटली दे आर गिविंग न्यू टॉपिक्स, सो दैट, and according to me, half an hour is required to brainstorm
and write 1000 words. Means 1000 words is typically 8 to 10 pages आप your hand writing. अरे एक पेज, अच्छा कल भी तुमको मैंने समझाया था एक पेज में कितने वर्ड्स, जाके काउंट करो, 100 वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट. इन वन पेज एवरेज स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट राइट्स 100 वर्ड्स. एक लाइन में 6 वर्ड और 20 लाइन्स मैक्सिमम इन वन. सो 1000 वर्ड के लिए कितने पेज, 10 पेजेज. इतने आर्टिकल को लिखने को तुमको 10 पेज लिखने पड़ेंगे, 10 पेज लिखने पड़ेंगे. इसके भी यही समझ लो, ये भी 1000 वर्ड ही है. This is called ideate page or op-ed. Typically this page is called op-ed, opposite to editorial. This is editorial, this page was editorial, this is opposite to editorial. This is called op-ed page. यहाँ पर इसको आइडिया पेज कह दिया इंडियन एक्सप्रेस में. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. देखो ये भी आज यूपीएससी वाली किसी ने लिखी है, PWD, फिजिकली हैंडीकैप ने अपना केस बनाया सॉलिड सा. लो पढ़ाता मैंने सवेरे बैठ के. So you have to improve on your thinking, writing, then you have to read the contents of good people. So read by word, बोल बोल के पढ़ो पहले और फिर उसको समराइज करो. What are the 4-5 points? अगर अच्छे से पढ़ा तो मुझे पहले उस वाले आर्टिकल के 5 पॉइंट बताओगे, सुहास पलसीकर वाले के जो मेन आर्टिकल है, जो उसने जिसमें अभी उसने बोला है, उसके 5 पॉइंट्स नरेट कर सकते हो. मुझे पूछना नहीं है क्योंकि क्लास खत्म होने जा रही है. You should be able to narrate, tell me the 1000 words content in 5 points. 100 words में समरी हो गई. जिस्ट तो ऐसा ही होता है ना, 1000 वर्ड का जिस्ट लिखवाना है, प्रेसी लिखवानी है. प्रेसी में मैक्सिमम इट करना, इट शुड नॉट बी मोर देन 1/3. If I ask you to write a précis, a 1000 word article, then précis should not be more than 300 words. Ideal précis is that whole idea is expressed in 150-200. बस 15 summarize करना है आपको. So if there are 5-6 points, it can be summarized in 150 words. Any article. Good. Read the syllabus. खत्म. syllabus पढ़िए और बताइए मुझे. कल की क्लास में खत्म हो जाएगी दोनों यूनिट. पहला यूनिट पढ़िए, पहले शुरू से पढ़िए एकदम बिगनिंग से. लॉज ऑफ मोशन सब कुछ मालूम पड़ गया. लॉज ऑफ मोशन, देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, पॉइंट पार्टिकल एज वेल एज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम. नेक्स्ट एप्लीकेशंस टू रोटेटिंग फ्रेम. कल हो जाएगा रोटेटिंग फ्रेम एंड सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल टर्म्स. नेक्स्ट मोशन अंडर ए सेंट्रल फोर्स. डिटेल में कर दिया मोशन अंडर ए सेंट्रल फोर्स. गुड. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड केपलर्स लॉज. फिनिश्ड. फील्ड एंड पोटेंशियल. फील्ड एंड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हटा दिया क्या अभी? हाँ यही है. पूरा लाइन पढ़ो, उससे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. पहले समझो आपने क्या कर दिया. अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल अकेले लिखा होता तो किसी भी ऑब्जेक्ट का पूछ लेता हो. आप शायद फिर से ढंग से नहीं पढ़ रहे हो. चलो फिर मुझे देखना पड़ेगा जाके. अरे उस ओरिजिनल पेपर मुझे याद है ना सिलेबस में क्या लिखा हुआ है. उसमें लिखा हुआ फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स. देखो भैया, अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स ना लिखे, सिर्फ फील्ड और पोटेंशियल लिख दे तो ओपन एंडेड हो गया. किसी भी चीज का डेरिवेशन पूछ सकता है आपको. सिलेंडर फिलेंडर ओपन हो जाएगा फिर तो चैप्टर. मेरी जानकारी के हिसाब से टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशन फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल बॉडीज और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स. दैट इज द टॉपिक. ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी एंड योर गॉसेस एंड पॉइसन थ्योरम. नेक्स्ट. टू बॉडी प्रॉब्लम रिड्यूस मास. आगे चलिए. Rutherford scattering center of mass and laboratory frame. करेक्ट. आगे पढ़िए. नेक्स्ट भी पढ़िए ना, नेक्स्ट यूनिट भी पढ़िए. मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. पढ़िए नेक्स्ट. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सेंटर ऑफ मास. नेक्स्ट. एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ मास. इक्वेशन ऑफ मोशन. कंजर्वेशन थ्योरम्स फॉर एनर्जी कर दिया जिसे. नेक्स्ट. इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कॉलिजन्स. गुड.
rigid body, degrees of बस फिनिश्ड, यहीं तक किया इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन्स. Now from that onwards, rigid bodies and whatever, that is the next unit, rigid body dynamics. That unit is called rigid body dynamics. That I will take 2 classes to conclude rigid body dynamics. So by the end of this week, we will complete rigid body dynamics and we will also complete mechanics of continuous media. इस हफ्ते सब खत्म हो जाएगा. Mechanics of continuous media, rigid body dynamics, तीनों यूनिट खत्म हो जाएंगे. Only the unit which will, and 1 class of STR. STR की भी एक क्लास खत्म हो जाएगी. ओनली 3 क्लासेस ऑफ STR. तो बाई वेडनेसडे ऑफ नेक्स्ट वीक 22, 23, 24 तक खत्म हो जाएगा मैकेनिक्स A to Z. गुड, क्लास इज कंक्लूडेड.